you're seeing here are two videos. The first video is of Mr. Srinivasan. He is the owner of Sri Annapurna Sweets of Coimbatore. There was a meeting organized by the BJP. As far as its membership drive is concerned, people from all walks of life, including businesses in Coimbatore, were invited to meet Finance Minister Nirmala Sitharaman. In the first video, and for the benefit of those who do not understand the beautiful Tamil language, like I don't do, I will just simply tell you what he says. He says, I have a sweet shop. The GST rates are so different for each category that sometimes it makes the person calculating the input credit an income tax official difficult to calculate. The computer gets stuck. He then goes on to say, sweet attracts a GST of 5%. On savories, the GST is 12%. For a plain bun, there is no GST. But a bun with cream, the GST is 18%. And the computer gets stuck sometimes. There is laughter in that room. There is humor. The finance minister doesn't seem to mind at all herself. She also indulges in that humor. But within the next 24 hours, the owner of Sri Annapurna Sweets is summoned in the presence of the finance minister and is made to profusely apologize. And he is not just made to apologize, a video is surreptitiously recorded, perhaps without even his consideration or consent. And that video is shared by the official handle of the Bharatiya Janata Party's Tamil Nadu unit. There are a few questions that we have, but before those questions, there are some very, very emphatic observations that we want to voice before you. This is a grave cause of concern. If citizens of this country, if businesses of this country, if people of this country are not going to be able to voice their concerns before public servants, how is governance and policy making going to happen? The price for asking a question, the price for making a suggestion, the price for appealing for a simple GST regime is humiliation, is intimidation, is essentially making you apologize, recording videos surreptitiously, and then putting it out in public domain by the ruling party. That's how drunk on power, that's how intoxicated on power the BJP is. We've all known of the Prime Minister's fragile ego, but Ms. Nirmala Sitharaman perhaps beats him heads down. The fact that she's the finance minister of this country, the fact that she was meeting businesses from Coimbatore, the fact that businesses from Coimbatore are supposed to voice concerns before her is a given. But instead of resolving their problems, the finance minister chooses to intimidate, chooses to threaten, chooses to shame, chooses to humiliate businesses of this country. Why? Because they are small, medium enterprises. Because they are not the Adanis of the world for whom you roll out the red carpet. ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयम्बटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयम्बटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0, और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाए। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है, श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को,
और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। यह सत्ता का गंदा नशा, यह सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो यह और क्या है। और यह वो सरकार कर रही है जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है। इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो, फिर देखिए 10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था, खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया। 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है। लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे तो उनके साथ ये किया जाएगा।